اور یہاں پر دیں گے کانٹیکٹ اور اس DB کو انیشلائز کریں گے ہم ایکولز ٹو اس کانٹیکٹ سے. تو یہ ہمارا ڈیٹا بیس کا انسٹنس بن گیا. اب ہم امپلائی کی لسٹ ڈیٹا بیس سے فیچ کریں گے. تو سب سے پہلے ٹرائی کیچ لگائیں گے ان کیس کوئی ایکسیپشن آئے تو ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. آپ نے ٹرائی لکھنا ہے, ڈبل ٹیپ پریس کریں, ہمارے پاس یہ ٹرائی کیچ لگ گیا. پریویس ویڈیو میں ہم نے سنگل ٹیبل سے لسٹ گیٹ کی, اب ہم نے ملٹیپل ٹیبل سے لسٹ گیٹ کرنی ہے تو ہم جوائن لگائیں گے. ویریبل لیں گے امپلائی لسٹ, لنک کیوری یوز کریں گے. فرام امپلائی کے ٹیبل سے لسٹ گیٹ کرنی ہے تو الیاس دیں گے ای ان اور DB ڈاٹ امپلائیز. جوائن لگائیں گے ڈپارٹمنٹ کے ٹیبل کے ساتھ, تو ہم جوائن ڈپارٹمنٹ کے ٹیبل کو الیاس دیں گے ڈی ان DB ڈاٹ ڈپارٹمنٹ. کس بہاف پہ جوائن لگے گا یہاں پر ہم نے بتانا ہے آن ای ڈاٹ ڈپارٹمنٹ ID ایکولس D ڈاٹ ڈپارٹمنٹ ID کے. اس کو ایک نام دیں گے انٹو DEPT فرام D in DEPT ڈاٹ ڈیفالٹ اور empty. تو آپ سلیکٹ کا ایک پورا بلاک بنائیں گے, سلیکٹ نیو اور امپلائی کلاس کا نیم. کنٹرول اسپیس پریس کریں گے تو آپ کے پاس ساری پراپرٹیز آتی جائیں گی. سب سے پہلے ہم لیں گے امپلائی ID ایکولس ای ڈاٹ امپلائی ID, امپلائی نیم equals to e dot employee name, age equals to e dot age, gender equal to gender. اسی طرح ساری پراپرٹیز لینی ہے آپ نے. موبائل equal to e dot mobile, salary equal to e dot salary, department ID equal to e dot department ID. اب ہم امپلائی ماڈل کلاس میں ایک ڈپارٹمنٹ کے نیم سے ایک پراپرٹی بنائیں گے جس میں جوائن لگ کر ہمارے ڈپارٹمنٹس آئیں گے. تو وہ بنا لیتے ہیں. آپ یہاں پر آ جائیں, امپلائی ماڈل کلاس میں آنا ہے آپ نے. یہاں پر ایک فیلڈ بنائیں گے, پراپرٹی بنائیں گے پبلک اسٹرنگ ڈپارٹمنٹ, اور اس کو نلیبل بھی بنانا ہے. پراپرٹی بنا لی ہم نے, اس کو یہاں سے کاپی کر لیں, واپس آئیں تو یہاں پر کوما لگائیں گے. ڈپارٹمنٹ ایکولز ہے D کے, اور ہم نے چیک کروانا ہے کہ D نل تو نہیں ہے. اگر یہ نل ہے تو اس میں empty پاس کر دو, ادروائز D ڈاٹ ڈپارٹمنٹ نیمز وہ اس کو اسائن کر دو. یہاں سے ہم نے ڈپارٹمنٹ لے لینا ہے. ڈپارٹمنٹ کے نیم سے ہم نے ایک پراپرٹی بنائی اور اس کو ایکول کیا D کے, اور D ہمارے پاس کیا ہے, D ہمارے پاس D ڈاٹ ڈپارٹمنٹس ہے. ہم نے چیک کیا کہ D اگر ایکول ہے نل کے تو اس میں empty string پاس کر دو, ادروائز اس میں ڈپارٹمنٹس جو ہیں ہمارے پاس وہ اس کو اسائن کر دو. یہ لسٹ ہم نے بنا لی. اس امپلائی لسٹ کو ہم اپنے اس ویو کو اسائن کر دیں گے. اسائن کیسے کریں گے, آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ریٹرن ویو, اور اس میں ہم یہ لسٹ پاس کر دیں گے. اور آپ نے کیا کرنا ہے, اس ریٹرن ویو کو یہاں سے آپ نے کٹ کرنا ہے اور اس تھرو کی جگہ پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے. لسٹ ہماری ریڈی ہو گئی. اب ہم نے اس کا ویو کریٹ کرنا ہے. تو ویو کریٹ کرنے کے لیے آپ نے اس پہ انڈیکس پہ رائٹ کلک کریں اور اس کا ویو کریٹ کریں گے. ایڈ ویو پہ کلک کریں گے, ریزر ویو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے اور ایڈ پہ کلک کریں گے. یہاں سے ہم نے ویو نیم دینا ہے. ویو نیم ہمارے پاس انڈیکس ہے. ٹیمپلیٹ سلیکٹ کریں گے. ٹیمپلیٹ آپ نے لینا لسٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ماڈل کلاس. ماڈل کلاس ہمارے پاس کون سی ہے, امپلائی. امپلائی ماڈل کلاس سلیکٹ کریں گے. DB کانٹیکٹ کلاس, یہاں سے آپ نے DB کانٹیکٹ کلاس بھی سلیکٹ کر لینی ہے اور ایڈ پہ کلک کریں گے.
जैसे मैंने ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो जनरेट होना स्टार्ट हो गया। तो एम्प्लॉइज लिस्ट का व्यू हमारे पास क्रिएट हो गया। कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं साथ साथ। यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स है, तो इंडेक्स को हम यहाँ पर करेंगे एम्प्लॉइज लिस्ट, और इसको हम H3 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास न्यू एम्प्लॉय ऐड करने का लिंक है, तो यहाँ पर हम करेंगे, इसके टेक्स्ट को चेंज करेंगे, यहाँ पर करेंगे ऐड एम्प्लॉय। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास टेबल स्टार्ट हो रहा है, तो टेबल को कुछ क्लासेस असाइन कर देंगे। टेबल डैश बॉर्डर्ड, टेबल डैश स्ट्राइप्ड। तो इसके बाद हमारे पास आ रहा है एम्प्लॉय नेम, एज, जेंडर, मोबाइल, सैलरी, डिपार्टमेंट और DEPT। इस DEPT की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पर मॉडल में भी हम इसको रिमूव कर देंगे। और यहाँ पर हमें ये डिटेल्स का लिंक नहीं चाहिए, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। और एक काम कर लें, यहाँ पर इस डिपार्टमेंट को यहाँ से कट करें और इसको नेम के बाद लें, और इसी तरह मॉडल में भी आपने करना है। इसको यहाँ से कट करेंगे और नेम के बाद इसको आपने पेस्ट कर देना, सेव करेंगे। तो इसको चलाकर भी देखते हैं कि एम्प्लॉइज की लिस्ट हमारे पास किस तरह से डिस्प्ले हो रही है। तो यहाँ पर आपने इसको रन करना है। यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट राउटिंग में होम कंट्रोलर और इंडेक्स एक्शन मेथड कॉल होता है। तो यहाँ पर हमने राउटिंग सेट नहीं की, तो हम राउटिंग को सेट कर लेते हैं। उसके लिए आपने आ जाना है यहाँ पर program.cs फाइल में, यहाँ पर नीचे आए, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट जो कॉल हो रहा है वो है होम कंट्रोलर और उसका इंडेक्स एक्शन मेथड। यहाँ पर हमने होम नहीं करना, यहाँ पर हम करेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कंट्रोलर हो गया, और उसके बाद एक्शन जो कॉल हो रहा है वो है इंडेक्स का। तो हमने जो एम्प्लॉय लिस्ट कॉल की है, हमने भी इंडेक्स के एक्शन मेथड में ही एम्प्लॉयज की लिस्ट कॉल की है। तो इंडेक्स को इसी तरह ही रहने देना आपने, लेकिन कंट्रोलर आपने होम की जगह पे एम्प्लॉय करना है। प्रोजेक्ट को स्टॉप करेंगे और दोबारा से इसको रन करते हैं। राउटिंग हमने सेट कर दी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हैज बीन नॉट इनिशियलाइज्ड। इसका मतलब ये है कि हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग में कोई प्रॉब्लम है। तो इसको चेक कर लेते हैं। वापस आएंगे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में, यहाँ पर आ जाएं, ऐप settings.json में आए, और यहाँ पर हमारे पास है सर्वर नेम, डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड, ट्रस्टेड कनेक्शंस इक्वल्स टू फॉल्स, ट्रस्ट सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। ये हमारे पास ठीक है, लेकिन ये देखें यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स है, एस भी आएगा। आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है आपने। इसको सेव करें और दोबारा से इसको हम रन करेंगे, और फिर देखते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। दोबारा से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट सक्सेसफुली डिस्प्ले हो चुकी है। कुछ फॉर्मेटिंग हमने कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ लिस्ट है और यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय का लिंक है, पहले इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स है, सबसे ऊपर आ जाएं टॉप पे। तो यहाँ पर हम एक डिव लेंगे और इसको क्लास देंगे कंटेनर डैश फ्लू। इसके अंदर एक और डिव लेंगे और इसको क्लास असाइन करेंगे इसको क्लास देंगे रो। इस रो में हम दो सेक्शन बनाएंगे। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम एम्प्लॉयज लिस्ट को रखेंगे। यहाँ पर आपने H3 को यहाँ से कट करना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो आपके पास P है, जो हमारे पास एम्प्लॉय ऐड करने का लिंक है, आपने इसको यहाँ से कट करना है, इसको दूसरे सेक्शन में आपने पेस्ट कर देना है। और ये जो हमारे पास P है, इसको भी एक क्लास असाइन कर देते हैं फ्लोट डैश एंड, ताकि ये राइट साइड पे मूव कर दे। और ये हमारे पास एम्प्लॉय ऐड करने का लिंक है, तो इस लिंक को बटन में कन्वर्ट करेंगे। क्लास असाइन करेंगे इसको btn डैश प्राइमरी।
इस रो को हम एक बैकग्राउंड कलर भी असाइन कर देते हैं। फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। और यहां पर आपने ऐड करना है मार्जिन टॉप 3 दे दें और इसको भी यहां पर आपने empty-3 करना है। इसको सेव करेंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास बूटस्ट्रैप और स्टाइलिंग की जो CSS है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। इसको आप मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप टेबल की हेडिंग को भी बैकग्राउंड कलर असाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप बहुत सिंपल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाए, यहाँ पर आपने स्टाइल, इसमें आपने देना है टेबल TRTH और इसको आपने बैकग्राउंड कलर असाइन कर देना है। फाइल को सेव करेंगे और इसका रिजल्ट देखते हैं। और यहाँ पर देखें हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी असाइन हो गया। और अगर यहाँ पर हमने सीरियल नंबर डिस्प्ले करवाना हो तो वो भी हम बहुत इजी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाएं, सबसे ऊपर एक आपने TH लेना है और इसमें आपने हेडिंग देनी है सीरियल नंबर। और इसके साथ साथ आपने आ जाना है नीचे यहाँ पर मॉडल में और यहाँ पर एक आप TD लेंगे और यहाँ पर टेबल बॉडी के बाद आप एक वेरिएबल बनाएं। नाम रखें I और इसको 0 वैल्यू असाइन कर दें। और इस वेरिएबल को आपने लूप के अंदर प्लस करवाना है। I लिखेंगे प्लस प्लस, जब तक लूप चलता रहे और इसमें प्लस होता रहे। इसको यहाँ से बंद कर देंगे और ये जो हमने TD बनाई थी यहाँ पर आपने इसको कॉल कर लेना @I। इसको सेव करेंगे और इसका रिजल्ट देख, तो यहाँ पर देखें हमारे पास सीरियल नंबर डिस्प्ले हो गया। तो एम्प्लॉइज की लिस्ट हमारे पास डिस्प्ले हो रही है। तो अब हम एम्प्लॉय ऐड करने पर काम कर लेते हैं। जब हम ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कंट्रोलर कौन सा है, एम्प्लॉय कंट्रोलर, और एक्शन कौन सा है, क्रिएट का एक्शन। हम क्रिएट का एक्शन क्रिएट कर लेते हैं। पेज कैन नॉट बी फाउंड, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि क्रिएट का एक्शन हमने अभी नहीं बनाया, तो इसको बना लेते हैं। आप यहाँ पर आए एम्प्लॉय कंट्रोलर में और इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और इसके बाद यहाँ पर लेंगे पब्लिक और नाम रखेंगे क्रिएट। रिटर्न करवाएंगे व्यू